Hello, students. I welcome you back to this online lecture today. And we have been doing the chapter The Tiger King by Kalki. And today we will continue from where we had stopped in the last lecture. In the last video, we had stopped on page number 11. And we had started part 3 of the chapter. Until now in the story, we see that the Tiger King is bent upon killing the tigers in Pratibandhapuram. And he is also trying to negate the prophecy that was done by the chief astrologer when he was born. And he was trying to kill all the tigers so that he had, if he would kill all the 100 tigers and succeed in this idea, then he would not be killed by any tiger. So he would in a way negate this prophecy. But all this we see is a kind of dramatic irony that the writer has used in the story, and through that he is trying to tell the readers that even though the Tiger King doesn't know about the foolishness that he is doing, about the whimsical nature that he has, the readers are well aware of this, and the readers are also aware that however much he tries to run away from death, and however much he tries to run away from fate and destiny, if it is bound to happen, then it will happen someday or the other. Like we all know that we cannot escape death. Death is something invincible. Now, what is the manner of our death is something very immaterial, and as long as we live, we have to make sure that we live a good life. So, how we die doesn't matter, but it is something of great importance, something of great concern to the Tiger King, who is trying to prove the prophecy wrong. So Tiger King यहाँ पे basically क्या कर रहे हैं? He is trying to kill all the tigers, and वो अपने इस mission पे बिल्कुल rigid हो गए हैं, and बिल्कुल उन्होंने अपनी कमर कस ली है that now he is going to kill the 100 tigers, come what may. So we will continue from page number 11. The second last paragraph where we had stopped. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. Not that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him, and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaj who won. So the Tiger King is now he has launched upon this mission, and he also makes this announcement that now he will do all the works of the kingdom. He will attend to all other matter only after killing 100 tigers. So अब उनके लिए टाइगर मारना सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी हो गई है, एंड बाकी सारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, एक महाराजा की जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन सब को वो उन्होंने साइड ट्रैक कर दिया है. दैट अब वो बाकी सारी चीज़ों को तभी देखेंगे जब वो इस काम को पूरी तरह एक मिशन इसको कंप्लीट कर लेंगे. जब तक वो 100 टाइगर्स नहीं मार लेंगे, इसको अंजाम तक नहीं पहुंचा लेंगे, वो और किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगाएंगे. सो दिस इज़ द टाइगर किंग, and he is well prepared with all the equipments for killing the tigers, and he also faced problems while killing the tigers. Like sometimes when he shot the tiger, the bullet missed the mark and the tiger was not killed, and sometimes it also happened that the tiger leapt upon him. Tiger उनके ऊपर आ जाता है, and then it is written that he fought the beast with his bare hands. So टाइगर किंग के बारे में ये भी बातें बोली जाती हैं कि वो जब शेर को मारते थे और शेर उनके ऊपर वापस हमला करता था, तो वो उससे अपने हाथों से लड़ते थे. So all this is we don't know how much it is true and how much it is rumor, but since it is a story, since it is a fiction, we have to believe it. Okay. So each time the Maharaja won. तो जितनी बार भी ऐसा होता था कुछ, तो हर बार महाराजा ही जीतते थे, and the tiger used to lose, and in the end he would end up killing the beast. Okay. At another time he was in danger of losing his throne. The high
A high-ranking British officer visited Pratibandhapuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with tigers he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. तो राइटर जो है वो हमको एक किस्सा बता रहे हैं कि एक बार इसी दौरान जब वो इस अपने मिशन पे जारी हैं द टाइगर किंग, तो एक बार क्या होता है कि बहुत डेंजर आ जाता है पूरे किंगडम पे, उनकी जो राजगद्दी है उस पर बहुत डेंजर आ जाता है. कैसे आ जाता है? बिकॉज वंस अ ब्रिटिश ऑफिसर, एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का ब्रिटिश ऑफिसर, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, ही विजिट्स दैट स्टेट जिसके वो महाराज हैं. ओके, एंड देन वो जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है वो टाइगर हंटिंग का बहुत शौकीन होता है. तो वो टाइगर हंटिंग का शौकीन होने के साथ साथ और ज़्यादा उसको किस चीज़ का क्रेज़ होता है? ऑफ गेटिंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स. ओके, टाइगर्स को मार के उनके डेड बॉडी के पास खड़े होके या उसके ऊपर खड़े होके फोटोग्राफ खिंचवाने में उस ब्रिटिश ऑफिसर को ज़्यादा उसका इस चीज़ का शौक होता है. सो एज यूजुअल जब वो प्रतिबंधपुरम में आता है टाइगर और अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है दैट ही वांट्स टू हंट टाइगर्स, तो जो महाराज हैं टाइगर किंग जो है वो बिल्कुल इस बात पे की परमिशन नहीं देते हैं, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी टोल्ड के टाइगर्स अगर कोई मारेगा सो दैट वुड बी द महाराज जंग बहादुर हिमसेल्फ एंड नोबडी एल्स. सो ही सेज, I cannot organize any other hunt. You may go on a boar hunt, you may conduct a mouse hunt, we are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible. So महाराज जब उनको पता चलता है कि ब्रिटिश ऑफिसर आया है और उसको टाइगर हंट करना है, so he completely says no, he cannot give the permission. And he says that there are other alternatives. आप कोई और हंट पे जा सकते हैं, आप बोर हंट पे जा सकते हैं, आप इवन माउस हंट पे जा सकते हैं, यहाँ तक कि मैं आपको मॉस्किटो हंट पे भी मदद कर सकता हूँ, बट आई कैनॉट डू एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू टाइगर हंट एंड दैट इज इम्पॉसिबल इन प्रतिबंधपुरम. ओके, सो ही completely refuses. The British officer secretary sent word to the Maharaj through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaj could do the actual killing. So जब ये बात महाराज जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं, ऑब्वियसली ब्रिटिश ऑफिसर का जो ये शो ऑफ वाला एटीट्यूड है कि उसको टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाना बहुत अच्छा लगता है, एक मरे हुए टाइगर के साथ. ओके, सो इट इज़ कम्प्लीटली शोइंग द वैनिटी ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ द हायर क्लास पीपल. ओके, एंड जब उनको ये खबर पहुंचती कि टाइगर किंग ने मना कर दिया, व्हेन ही हैज़ रिफ्यूज्ड दैट ही वुड बी अलाउड टू किल एनी टाइगर्स, सो द महाराज सेंट द वर्ड. तो महाराज द ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो एक मैसेज भेजवाते हैं अपने सेक्रेटरी से महाराज को, महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, और उसके थ्रू ये मैसेज पहुंचाते हैं कि जो दुराई है, हु इज़ द दुराई? दुराई इज़ द सेम ब्रिटिश ऑफिसर. दुराई इज़ द वर्ड विच इज़ यूज फॉर अ वेरी हाई रैंकिंग ऑफिसर, अ चीफ ऑफ सम प्लेस. ओके, सो वो मैसेज भिजवाते हैं दैट उनको खुद टाइगर को नहीं मारना, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी. द महाराज को डू द एक्चुअल किलिंग. तो टाइगर को एक्चुअली कौन मारेगा? द महाराज ओनली. ठीक है, वही मारेंगे टाइगर को. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. So मैसेज ये आता है कि उनको मारना नहीं है टाइगर को, अगर नहीं भी मारेंगे सो इट विल बी फाइन, बट क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको फ़ोटो चाहिए. किस चीज़ की फ़ोटो चाहिए? उनको मरे हुए टाइगर की फ़ोटो चाहिए और हाथ में एक गन पकड़ के उनको वो फ़ोटो ओवरऑल ऐसी एक तस्वीर चाहिए जिसमें वो गन पकड़ के खड़े हो, वो ब्रिटिश ऑफिसर, एंड देयर इज़ अ डेड टाइगर लाइंग इन फ्रंट ऑफ हिम. सो दिस वॉज हिज डिज़ायर, दिस वॉज हिज विश. And what is it? Carcass. Carcass is a dead body, dead body of an animal. तो यहाँ पे टाइगर के कैरेकस की वो मांग कर रहे हैं कि जब वो टाइगर मार ले तो उसकी बॉडी भिजवा दें और फिर वो फोटो खिंचवा लेंगे ब्रिटिश ऑफिसर. Okay, but the Maharaj would not agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? So
when महाराज gets to know this कि उनको एक फ़ोटो चाहिए, he will have to send the tiger's body and all that. So the महाराज doesn't allow even this. और वो बोलते हैं कि मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, that if I allow now, मैं अगर अभी थोड़ी भी ढील दे दूंगा तो क्या होगा, आने वाले टाइम में और लोग आएंगे एंड दे विल से कि टाइगर हंटिंग करनी है, अच्छा ये करना है वो करना है. सो ही कम्प्लीटली रिफ्यूजेस कि ये भी नहीं होगा. नॉट इवन आई अलाउ any picture of him with the tiger. I'll not send any dead body and all. So this is the Maharaja's final decision. Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaj stood in danger of losing his kingdom itself. So ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है. ये दो चीज़ें बता रही है हमें. एक ये बता रही है कि महाराज जो हैं जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो उनकी राजगद्दी पे खतरा मंडराने लगा. वाई? बिकॉज उस टाइम जो इंडिया जो था, जब ब्रिटिश राज के अंडर आ गया था मोस्टली, और ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो अथॉरिटी थी उसको अगर कोई भी निगेट करता था, इवन जो इंडियन किंग्स होते थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के कठपुतली की तरह काम करते थे, और अगर उनकी बात को वो नहीं मानते थे तो उनको बहुत डेंजर फेस करना होता था. उनको बंदी बना लिया जाता था. इवन बड़े बड़े महाराज जो है और रूलर्स और अलग अलग नवाब, इन सब को बंदी बना लिया जाता था. उनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली जाती थी बाय फोर्स. ओके, सो दिस वाज द ब्रिटिश इंडिया. तो इसमें भी यही है कि ये जो महाराज हैं इनकी गद्दी पे खतरा मंडराने लगता है. ओके, द महाराज एंड दीवान हैड deliberations over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Sent samples of expensive diamond rings of different designs. So, the महाराज and दीवान, उनके जो दीवान होते हैं, महाराज के जो काउंसलर होते हैं, वो दोनों बैठ के क्या करते हैं, इस बात पे बहुत गौर व फिक्र करते हैं, बहुत मशवरा करते हैं. दे थिंक कि हमें क्या करना चाहिए कि ये डेंजर जो है वो टल जाए और महाराज भी खुश रहे, ब्रिटिश ऑफिसर भी खुश रहे, महाराज की भी जो डिसीजन है वो भी अपनी जगह रहे. ओके, सो दे आर डेलिब्रेटिंग एंड दे कम विद द आइडिया कि हमको कुछ उनको गिफ्ट करना चाहिए, ब्रिटिश ऑफिसर को हम कुछ गिफ्ट कर दें. ठीक है. सो ये लोग क्या करते हैं, ये सबसे अच्छी जो ब्रिटिश की कंपनी है, ज्वेलरी की कंपनी होती है कैलकटा में उस टाइम. Calcutta was the capital of India during the British times. Okay, so कैलकटा में जो ब्रिटिश ज्वेलरी की दुकान होती है सबसे बड़ी, वो वहाँ से सैम्पल डिज़ाइंस मंगवाते हैं डायमंड रिंग्स के. ओके, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के. एंड देन व्हाट दे डू, सम 50 रिंग्स अराइव्ड. फिर उनके डिज़ाइंस आ जाते हैं, कुछ 50 डिज़ाइंस के सैम्पल रिंग्स आ जाते हैं. द महाराज सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी. द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसिनी टू चूज वन और टू रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक. Within no time at all, the Duraisini sent her reply, "Thank you very much for your gifts." Okay, so क्या हो रहा है कि जब ये लोग सोचते हैं कि हम उनको खुश कर दें कुछ गिफ्ट दे करके, ताकि वो बुरा भी ना माने कि हमने उनको मना कर दिया. सो एज अ सॉर्ट ऑफ ब्राइबरी समझिए, एक तरह से वो उनको खुश करने के लिए ब्राइब ही दे रहे हैं, दैट ही इज़ ट्राइंग टू प्लीज हिम. ओके, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट ही इज़ डूइंग दिस फॉर हिज बेटरमेंट. अपनी गद्दी वो बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं. सो वो जब डिज़ाइंस मंगवाते हैं 50 डायमंड रिंग्स के, और वो उनको जो दुराई होता है, जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर होता है, वो उसके पास भेजवा देते हैं उसकी वाइफ के लिए अ सॉर्ट ऑफ गिफ्ट, कि वो उसमें से एक दो रिंग्स चूज़ कर ले और वापस भेज दे. सो दिस इज़ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर एंड हर हस्बैंड, दैट इज़ द ब्रिटिश ऑफिसर. बट बहुत ही जल्दी उनका रिप्लाई आ जाता है, और वो रिप्लाई में क्या भेजती हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स. तो क्या समझ आ रहा है, दैट वो उन्होंने पूरी 50 की 50 रिंग्स अपने पास रख ली. ओके, ऑल द एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स the British officer's wife, she kept for herself, and she even thanked the Maharaja. Okay, so this shows the vanity, this shows the greediness of the high ranking people. उनके पास जितना होता है उनको उतनी ज़्यादा
और चीज़ों को पाने की ख्वाहिश होती रहती है. सो दिस डिज़ायर नेवर एंड्स, और ये जो नेवर एंडिंग डिज़ायर होता है इसी को हम ग्रीड बोलते हैं. सो वी कैन सी द ग्रीड वेरी क्लियरली इन ऑल द अथॉरिटेटिव पीपल, जिनके बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जे हैं, उनके रियलिटी में जो है उनके अंदर ग्रीड कितनी ज़्यादा है. सो शी doesn't return the others. In fact, she keeps all the diamond rings. Okay. So in 2 days, a bill for 3 lakhs of rupees came from the British jewelers. The Maharaj was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. So वो तो वो रख लेती हैं. ओके. एंड देन 2 दिन बाद बिल आता है, उस 50 रिंग्स का बिल आता है कैलकटा से, और वो बिल कितना होता है, टोटल ऑफ 3 लाख रुपीज़. सो दोज डायमंड रिंग्स अमाउंटेड टू 3 लाख रुपीज़ ऑफ दोज टाइम्स. आज के टाइम में वो और ज़्यादा मनी होगा. ओके. उस टाइम पैसे की जो वैल्यू थी वो थोड़े से पैसे की ज़्यादा वैल्यू होती थी. सो दैट टाइम इट वॉज ओनली 3 लाख रुपीज़, बट इट इज़ अ ग्रेट अमाउंट. ओके. सो ये एक तरह से देखा जाए तो इनके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है, राजा महाराजा के लिए. ओके. इनके किंगडम के लिए, क्योंकि इतना जो वेल्थ है इनके किंगडम का, इतनी जो जायदाद, सॉरी, इतना जो पैसा है इनका, ये बेसिकली जो पब्लिक के लिए यूज़ होना चाहिए, या जो पब्लिक वेलफेयर और उनके फेलो जो सिटीजन्स हैं उनके लिए जो यूज़ होना चाहिए, वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, किसी को खुश करने के लिए. सो दिस इज़ अ कंप्लीट लॉस. एंड ये जो एक्ट है महाराजा की, अपनी फूलिशनेस में किसी को पहले तो वो फूलिशनेस कर रहे हैं ये इस काम को करके कि उनको 100 टाइगर्स मारने हैं. ओके. सो दिस इज़ अ कंप्लीट फूलरी फ्रॉम बिहाफ ऑफ द टाइगर किंग. एंड सेकेंडली ही इज़ ट्राइंग टू मेक दैट लेडी हैप्पी, दैट ऑफिसर हैप्पी. सो ये एक दूसरी बहुत अजीब सी बात है, दैट इफ़ यू आर टेकिंग अ डिसीजन, स्टैंड ऑन इट एंड डोंट फियर एनीवन. बट अगर उनको फियर भी है, सो अब वो इस फियर को दूर करने के लिए अब दूसरा क्या काम कर रहे हैं, वो इतने एक्सपेंसिव रिंग्स भिजवा देते हैं. नाउ ही इज़ सफरिंग अनदर अटैक कि उनको इतना ज़्यादा लॉस होता है. बट स्टिल ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग. टाइगर किंग को ये झटका मिलने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है. वॉट ही थिंक्स, ही इज़ बेसिकली हैप्पी. वो खुश होते हैं ये बात सोच करके कि 3 लाख रुपया तो गया. सो दैट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज ही हैज़ हिज किंगडम. तो जब तक उनकी गद्दी उनके पास है, उनका किंगडम उनके पास है, इट डजेंट मैटर. पैसा है, चला गया, ओके, बट एटलीस्ट उनकी जो अथॉरिटी है वो उनके हाथों में है. सो दिस इज़ कंप्लीट फूलिशनेस. दिस इज़ कंप्लीट क्या बोल सकते हैं, एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल सा बिहेवियर फ्रॉम बिहाफ ऑफ द टाइगर किंग. ओके. सो दिस इज़ समथिंग फूड फॉर थॉट फॉर अस. हमें ये सोचना है कि किसके एक्शंस किस हद तक सही है, किस हद तक उनको क्या करना चाहिए. सो दिस इज़ वेयर वी स्टॉप टुडे. दिस इज़ वेयर वी पॉज. दिस इज़ पेज नंबर 12. And in the next video lecture, we will continue from part 4.